नमस्कार दोस्तों, आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर हुआ ना उस लेडी डॉक्टर का एक कॉल रिकॉर्डिंग बल्कि वायरल ऑडियो ने इसकी रंग ही पलट दिया। इस कॉल रिकॉर्ड में क्या हुआ है उस आरजेकर कॉलेज में, आखिर उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, कहाँ उसको रेप किया गया और किसने रेप किया, पूरे खुलासा इस कॉल रिकॉर्डिंग में किया गया है। आइए सुनते हैं सबसे पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को, उस ऑडियो को, उस ऑडियो में क्या है। आइए हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। আরজিগরে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগর হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে, কি সাসপেক্ট করছিস তোরা আরজিগরের ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে। এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে। নাম নিতে পারবো না কারণ দাদা আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না, নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে। सुन के आप लोग समझ गया है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन की हाथ है, यानी कि किसी आमिर बाप की बेटे है, उसके पीछे पॉलिटिशियन की पावर है, इसीलिए जो कॉलेज मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, इसको सपोर्ट कर रहा है। वो जो घटना हुआ है ना, जो रेप और मर्डर हुआ है ना, इसको छुपाया जा रहा है, इसको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उसको जैसे बचाया जा रहा है ना, इसमें पता चलता है कि इसे किसी पॉलिटिशियन का ही हाथ है, किसी बड़ी फैमिली का हाथ है, इसीलिए इस केस को गुमराह किया जा रहा है, इस केस को छुपाया जा रहा है। आइए दोस्तों आगे सुनते हैं क्या कहते हैं इस ऑडियो में, इन लोग क्या कहते हैं। এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে, গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, ঠিক আছে। একটা যদি খারাপ টাইমে তোমার পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়, জাস্ট মেয়েটা মেয়ে কি করছে, ও সে যখন ছড়ে যায় না, পুরো সবকিছু ভেঙে পড়ে যায়। সেটাই হবে কাল বা পরশুর অপেক্ষা জাস্ট। আমি দাদা অ্যাজ এ ইন্টার্ন এটাই আর্জি জানাবো সবার কাছে যে আমাদের উপর ডিপেন্ড না করতে। এটা একটা মহিলা, একটা মা, একটা বোনের এরকম হয়েছে, কমন মানুষের যেন আমাদের পাশে আসে, বাকি কলেজটাও যেন আমাদের পাশে থাকে। আরজিগর ইজ ডুমড। আরজিগর থেকে কিছু এক্সপেক্ট করো না। ক্রাইম সিন যেখানে হয়েছে, যেখানে সাসপেক্ট লুকিয়ে আছে, সে যে কেউ হতে পারে, অথরিটির হয়তো কোনো লোক, হ্যাঁ সে অথরিটির অবভিয়াসলি হয়তো নয়, তো সেখানে দাদা আমাদের থেকে কিছু এক্সপেক্ট করো না। सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो दोस्तों ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है, बल्कि ये कॉलेज के ही जो स्टाफ है, जो जिस लड़की का रेप हुआ है ना, उसका ही क्लासमेट है, उसका ही फ्रेंड है। ये दुश्मनी की वजह से किया है दोस्तों। इस ऑडियो में पूरी खुलासा किया है इस बंदे ने, और इस बंदे बहुत ही डर रहा है, ऐसे कह रहा है कि मेरे नाम जैसे सामने मत घसीटो, मेरे नाम सामने मत लाओ, क्योंकि ये डरता है। ये बहुत ही डरावना से कह रहा है कि इसके पीछे एक पॉलिटिशियन की हाथ है, बल्कि ये किसी एक की काम नहीं है, इसका गैंग में रेप कराया गया है दोस्तों। ये 3 या 4 बंदे की काम है, वो मिल के गैंग में रेप कराया गया है, और इस गैंग को, इस रेप को ये लोग छुपा रहा है। जिस प्रिंसिपल ने घर पर फ़ोन करके कहते हैं, उस लड़की के पेरेंट्स को फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी सुसाइड किया है, या कॉलेज की तरफ से आता है, वो नहीं बोलता है कि आपका बेटी का रेप हुआ है। वो 3-4 घंटे की बात जो सुबह होता है, सुबह 7 बजे उन लोगों को खबर आता है कि ये मर्डर हुआ है, एक रेप हुआ है। क्यों दोस्तों? इसके पीछे कॉलेज मैनेजमेंट की हाथ है ना। आप लोग शायद समझ गए होंगे। फटक से उस जहाँ पर वो घटना हुआ है वहाँ का CCTV फुटेज गायब हो जाता है,
इसके पीछे कॉलेज का ही हाथ है, बल्कि और बाहर की कोई आदमी नहीं है। और जिस बंदे को गिरफ्तार किया है ना, शायद वो भी शामिल हो सकती है। अभी भी वो खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी उसका पूछताछ जारी रहा है। वो पूछताछ कर रहा है कि इसमें कौन कौन शामिल है और कहाँ से है, या इसके पीछे क्या किसी दुश्मनी की वजह से ये हुआ है, या किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुआ है, ना इसे किसी भावनाओं के लिए हुआ है, किसी अपने मन को शांति देने के लिए ये घटना किया गया है। दोस्तों आखिर क्यों किया गया है, आखिर क्यों किया गया है? इस लड़की का क्या कसूर था, उस लड़की का क्या कसूर था? तुमसे जलन फील होता है दोस्तों। आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप लोग प्रोटेस्ट करें कि उस कॉलेज का ही हाथ है, बल्कि बाहर का किसी का हाथ नहीं है। उस कॉलेज में जिस क्लास में वो लड़की था, उसका जो क्लास फ्रेंड है, उसका फ्रेंड ही ये काम कर सकते हैं। उस लड़की का जाना पहचाना लोग ही ये काम किया है, किसी बाहर के आदमी का वो काम नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये कॉलेज का काम क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उस समय बिल्कुल भी कॉलेज बंद था, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था, बाहर की कोई आदमी तो नहीं था। गेट पर सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कोई बाहर के आदमी नहीं था, तो अंदर के आदमी ने ही किया है ना, उसका ही उस कॉलेज का ही मेंबर ने किया है, उस लड़की के साथ था दोस्तों। जैसे कि ये लोग किया है कि खुलासा किया है कि इस घटना को डॉक्टर रूम पे किया गया है और उस लड़की का लाश को सेमिनार रूम पर फेंक दिया गया है। दोस्तों ये घटना डॉक्टर रूम पर हुआ है, और बल्कि ये घटना एक आदमी ने नहीं किया है, बल्कि 4-5 आदमी ने किया है दोस्तों। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला कि जो स्पाम मिला है ना, जो स्पाम मिला है वो 100 से या 150 ग्राम की हिसाब से मिला गया है दोस्तों। ये तो किसी एक आदमी का नहीं है, बल्कि 4 या 5 आदमी का स्पाम है। गैंग में रेप कराया गया है और बाद में इसको मर्डर किया है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का आवाज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आऊँगा। तो इसीलिए जय हिंद, वंदे मातरम।